ریاست کے بعض حصوں میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے تمام امتحانات کو دسہرہ تک ملتوی کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سویتا اندر ریڈی نے بتلایا کہ امتحانات کے نظر ثانی شدہ شیڈول کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما راؤ، مجلس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سوزن اویسی، ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو، رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آج کاروان حلقے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں بالخصوص ندیم کالونی ٹولی چوکی کا دورہ کیا اور 25 گھر والوں کو حکومت کی طرف سے منظورہ 10,000 روپے کے چیکس حوالے کیے۔ کوثر محی الدین نے علاقے میں ہوئی تباہ کاریوں اور نقصانات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس دورے میں حیدرآباد کے میئر بی رام موہن، زونل کمشنر جی ایس ایم سی پروانیہ، منڈل ریونیو آفیسر کے علاوہ کوآپریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، سرگرم کارکن سلام کھلاڑی، شکیل خان وغیرہ بھی شامل تھے۔ کوثر محی الدین نے بتایا کہ مزید جن افراد کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے ان کے مالی نقصانات کی پابجائی بھی کی جائے گی اور انہیں بہت جلد چیک حوالے کیے جائیں گے۔ اس دورے کے دوران خاص بات یہ رہی کہ صدر مجلس اور ریاستی وزراء کو مقامی عوام کے شدید غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی علاقوں میں پانی کی نکاسی اور گھروں کی صفائی اب تک نہیں ہوئی ہے۔ امدادی چیکوں کے لیے آدھار کارڈ اور دوسرے دستاویزات طلب کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے بیشتر دستاویزات پانی کی نظر ہو گئے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ آنے والے بلدی انتخابات کے پیش نظر ریاستی حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ بہن کا پورا گھر ڈوب گیا، 5 گھنٹے سے وہاں بٹھا کے آپ بول رہے ہیں یہاں پہ آؤ، چھاپرا میں آئے، آگے پورے عورتیں کھڑے ہوئے، آپ بول رہے ہیں 10 جنوں کو دے رہے، خالی آپ کے ٹی آر آتے کہتے آگے دے کے چلے جاتے کے ٹی آر صاحب، 10 جنوں کو دے رہا ہے، کہیں کو بلایا پھر 10 جنوں کو، جب پورا کالونی کو آگے ڈور ٹو ڈور کرو، اگر یقین نہیں آ رہا تو آگے دیکھو، بولو پانی ہے نہیں ہے گھر میں، آگے یقین گھروں پہ آؤ، بولو پورے منسٹروں کو گھروں پہ آگے دیکھو، بولو گھٹنے تک پانی ہے، پورے پانی میں عورتیں پانیوں میں بڑھ گیا ہے۔ اب آدھار کارڈ گھر میں پڑا ہوا تھا تو اٹھا کے لے گیا ہے، وہ بھی زیروکس تو لے گیا ہے، اوریجنل بھی کچا ہے، پورے اوریجنل ہے، زیروکس ہے، سب لے گیا ہے۔ اب یہ کیا اس کے لیے 10 جنوں کے آگے منسٹر صاحب کھڑ کے چلے جاتے، اگر دیتے تو دیتے بولو، نہیں دیتے تو نہ دیتے، آتے نہیں پوچھتے نہیں کوئی، دیتے ہی نہیں، اتنی پریشانی اٹھائے اور تھوڑی پریشانی اٹھا لی گئی، اور پریشانی اٹھا لی گئی، ایک تو آج دن سے لائٹ بھی نہیں تھی کالونی میں، لائٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانا نہ پانی نہ، پورا اتنا بول کے صبر کرتے ہیں جی، صبر کا بھی ہوتا تو ہوتا، نہیں ہوتا بول دو خلاص، جو کرنا ہے ابھی تک تو گھر والے بھی کر لیے۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے حالیہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں حکومت کی طرف سے دیے جانے والے امدادی چیک کی تقسیم کے کام کا اپنے اسمبلی حلقے صنعت نگر کے امیر پیٹ ڈویژن سے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارش نے 40 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جس سے سینکڑوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے کہا کہ وہ تنقیدوں کے بجائے متاثرین کی امداد کے کام میں حصہ لیں اور حکومت کے اقدامات کی تائید کریں۔ اس دورے میں کوآپریٹر شیشا کماری، زونل کمشنر پروانیہ اور منڈل ریونیو آفیسر وغیرہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ కొంత ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఇది 100 సంవత్సరాల 112 సంవత్సరాల నుంచి ఎప్పుడు రానటువంటి వర్షపాతం వచ్చింది। దానికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఉదారమైనటువంటి స్వభావంతో పేద వర్గాలని, మధ్యతరగతి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని చెప్పి, ఎఫెక్టెడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని ఒక 550 కోట్ల రూపాయలు అనౌన్స్ చేసి మనందరం చూసింది। ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచే స్టార్ట్ చేసామని, మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు, జోనల్ కమిషనర్ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు, కార్పొరేటర్ అందరూ కూడా ఇంటింటికి పోయి ఈ డబ్బులు, ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ వర్షం వల్ల అన్ని విధాలుగా నష్టపోయారు। కొంత గ్రాసరీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు, మీకు ఫ్యాన్ కావచ్చు, ఫ్రిడ్జ్ కావచ్చు, రకరకాల వస్తువులు డ్యామేజ్ అయినాయి కాబట్టి 10,000 రూపాయలు, అదేవిధంగా పార్షల్ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళు 50,000, ఫుల్లీ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళు 1,00,000 రూపాయలు। నాకు తెలిసి ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما راؤ نے آج راج بھون خیرتآباد کے روبرو واقع بستی مختے مداح شاہ کا دورہ کر کے وہاں حالیہ بارش سے جن افراد کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے اس کے متاثرین میں فی کس 10,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ انہوں نے عوام سے بھی بات چیت کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے ہر ممکنہ مدد کا یقین دلایا۔
उन्होंने बताया कि सूरत-ए-हाल की संगीनी को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बिला ताखिर इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इस दौरे में रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, कॉरपोरेटर्स के अलावा जिला कलेक्टर श्वेता मोहंती, जोनल कमिश्नर परवानिया और दूसरे भी शामिल थे। रियासत वज़ीर दाखिला महमूद अली और मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज मलकपेट हलक़े में सैलाब से मुतासरीन में 10,000 फ़ीकस के हिसाब से चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जोनल कमिश्नर, MRO और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए अहमद बलाला ने बतलाया कि उनके हलक़े में तकरीबन 5,000 मकानात मुतासरा हुए हैं। आज पहले किस्त के तौर पर चेक्स दिए गए, दूसरों में भी बहुत जल्द दिए जाएंगे। ओवरफ्लो होकर कई घरों के अंदर घुसकर पानी दाखिल होकर उनका सामान तबाह ताराज हो गया। नदी छोड़ने की वजह से घर मुतासिर हुए, बारिश की वजह से कई घरों में पानी दाखिल हुआ। तो हुकूमत की जानिब से जो प्रोग्राम किया रखा गया, हुकूमत की जानिब से मुसलसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी, जिस वक्त महमूद अली साहब पहली बार शंकर नगर में बारिश के बाद आए थे, जब भी हमने मुतालबा किया था कि माशी मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, खाली राशन देने से मसला हल नहीं होगा। हुकूमत ने आगे बढ़ते हुए उसको काम किया है। वो जितने घरों में पानी दाखिल हुआ है, हर घर में जो घर में पानी दाखिल होकर जिसको नुकसान हुआ है, पानी दाखिल होने वाले घरों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जो घर पार्शली डैमेज हुए हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जो घर ज़्यादा डैमेज हुए हैं उनको 1 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। हल्के मलकपेट असम्बली के अंदर करीब 5,000 मकानात है जिसके अंदर पानी दाखिल होकर छोटा बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और इंशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम का लॉन्च था, इसलिए यहाँ पर इस शादी खाने में रखकर जोनल कमिश्नर साहब और होम मिनिस्टर साहब, DMC साहब, पूरे ऑफिसर्स के साथ और हमारे तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ हमने आज ये प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो प्रोग्राम करे वही हर एक बस्ती में, चाहे वो छावनी का गुड्डी बौली हो, बाग़े जहारा हो, छावनी एरिया हो, एक खाना मस्जिद का एरिया हो, आज़मपुरे के अंदर तरके मुस्कुराहट हो, C क्लास हो, मूसा नगर हो, रसूलपुरा हो, काला डेरा हो, हर बस्ती के अंदर, चंचलगुड़े के जो घर के अंदर जहाँ भी पानी घुसा, ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के अंदर शंकर नगर, पद्मा नगर, खैरुनिसा मस्जिद और तीगलगुड़ा हट्स, जहाँ पर भी जैसा पापया बस्ती के अंदर भी कई घरों में पानी गया, तो तमाम लोगों को अकबर बाग में, पलटन में, सपोटा बाग में, काला डेरा के अंदर और मुसरम बाग के अंदर, बड़ा बाज़ार और दूसरे इलाक़ों के अंदर, वड्डर बस्ती, सैदाबाद डिवीज़न के अंदर फुसल बस्ती, हम्माल बस्ती, संकेश्वर बाज़ार, जहाँ पर भी पानी दाखिल हुआ, हर एक घर को हमारा एक तजिया है कि मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 5,000 घर ऐसे हैं जिसके अंदर पानी दाखिल हुआ। और हम मजलिस के जानिब से असद साहब और हम मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हर घर को ये इमदाद पहुँचे और हम इसको पहुँचाएंगे। किंग कोटी पर्दा गेट के पास 125 साला बड़का झाड़ गिर जाने के बाद मकामी अवाम ने इस बात की इत्तला हुक्काम को दी। ये झाड़ निज़ाम हुकूमत के दौर का था। शदीद बारिश की वजह से ये झाड़ गिर गया। सैयद सोहेल अल हसनी ने मीडिया से बात करते हुए मुकम्मल तफसीलात बतलाई। थोड़ा पीछे का आना और करीब से क्या है, आवाज़ आती है तो आवाज़ नहीं आती। चलो अब दियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही क़दीम बड़का झाड़ था, उसको बरकत का झाड़ भी कहा जाता है। ये तकरीबन जो है सो 125 से 150 साल पुराना झाड़ था। आसिफ जाही हुकूमत में लगाया गया था, मीर उस्मान अली खान साहब की हुकूमत में। पर्दा गेट से लेकर पेंटरगास जो है सो जो निज़ाम के पास पेंट करते थे पैलेस को, उनके मकानात थे तो उसको पेंटरगास कहा जाता है। पर्दा गेट किंग कोटी से पेंटरगास और न्यू सेंस कॉलेज जो फैंसी चौरस्ता कहा जाता है किंग कोटी, वहाँ तक मीर उस्मान अली खान साहब ने टोटल 7 झाड़ लगाए थे, जो कि ये आखिरी झाड़ था जो कि आज गिर चुका है।
अफसोस की बात है, निशानी बहुत ही अफसोस की बात है। रियासतें तो मिट गई, निशानियां भी मिट रहे हैं, जो चंद यादें बचे थे वो भी हाथों से छूट रहे हैं। तो बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत ही ख़दीम झाड़ था। आज सुबह 5:45 से 6 के दरमियान में ये झाड़ गिरा है और 2 इलेक्ट्रिक पोल भी गिर चुके हैं, उसके साथ में 2 से 3 पोल गिर चुके हैं। लेकिन बहुत ही फुर्ती और बहुत ही जुस्तजू दिखाते हुए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ने बहुत ही तेज़ी से काम किया है। आवाम को लाइट की तकलीफ़ नहीं हुई और ट्रैफिक को जाने आने की तकलीफ़ नहीं हुई, रास्ता बंद नहीं हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही बाखूबी काम हुआ है। लेकिन अफसोस भी है इस बात का कि एक निशानी आखिरी बची थी, आज वो भी चली गई। इजाज़त लेता हूँ मैं, अल्लाह मशकूर। रियासत के बाद हिस्सों में बारिश और सैलाब की वजह से तमाम इम्तिहानात को दशहरा तक मुलतवी कर दिया गया। रियासत वज़ीर तालीम पी सविता इंदर रेड्डी ने बतलाया कि इम्तिहानात के नज़रसानी शुदा शेड्यूल का बाद में ऐलान किया जाएगा। बारकस के मशहूर शख्सियत मंसूर सादी ने बाबा नगर और आसपास के इलाक़ों में बारिश से मुतासिरा होने वालों के लिए 3 वक्त का मुफ्त खाने का इंतज़ाम किया। उन्होंने बतलाया कि बारकस चंद्रायन गुट्टा के अल सादी फंक्शन हॉल में ये इंतज़ाम किया गया। ज़रूरतमंद बिला झिझक इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। मैं हबीब फ़हाद बिन अब्दुल अज़ीज़ बगदादी अल-जिलानी, जो बारिश का जो हालात चल रहे हैं आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई है, लोग बहुत मुतासिर हुए हैं बारिश के ज़रिए से। और कल जो बालापुर का जो कट्टा टूटने की वजह से बाबा नगर और दीगर तमाम यानी मोहल्ले जो मुतासिर हुए, लोग जो अपने घरों से बेघर हो गए और कई जो ना अमवात हो गए, तो उनके लिए हम लोग एक यानी हमारे पास हमारे मोहतरम जनाब मंसूर साले अल सादी साहब के फंक्शन हॉल में हम लोग जमा हुए हैं कि मुतासिरीन की ताउन के लिए, उनकी मदद के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे पास नासर भाई शेल्टर है, फंक्शन हॉल है। तो हमारे नासर मंसूर सादी साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर हम लोग पनाह यहाँ पर लोगों को जो है ना उनके लिए सहूलत फ़राहम करें तो अपने पास क्या क्या सहूलत है, आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जो सो यहाँ शादी खाने में खाने की सहूलत रहेंगी, रहने की सहूलत रहेंगी। अब जैसा कि सब लोग जहाँ जहाँ भी जो है मुतासिर हुए, उनके ने घर में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वो लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का भी बंदोबस्त है, रहने का बंदोबस्त है, हमामात का बंदोबस्त है। और यहाँ पर लेडीज़ का और जेंट्स का अलग अलग रहेगा इंशाल्लाह। लेडीज़ के लिए अलग है पार्टीशन, जेंट्स के लिए अलग है, प्राइवेसी रहेंगी पूरी इंशाल्लाह। आपको जो है खाने की सहूलत, रहने की सहूलत और सेफ्टी की सहूलत इंशाल्लाह यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। ये अल सादी फंक्शन हॉल है, चंदन गुट्टे पर है। अगर जो कोई भी अगर वाकिफ़ नहीं हो तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। ये अल सादी फंक्शन हॉल बारकस में है। आप तमाम से गुजारिश है कि जो लोग के पास भी ये हमारी वीडियो जा रही है वो लोग जो है ना मुतासरीन तक पहुँचाए। और यहाँ पर सहूलत है क्योंकि ये हम सब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जिस्म के कोई हिस्से को अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को बहुत तकलीफ़ है कि हमारे भाइयाँ जो है ना अतराफ चंदन गुट्टा बारकस में जो लोग भी मुतासिर हुए शहर हैदराबाद में, अब हमारे पास तो बारकस में फंक्शन हॉल है, तो हम लोग अतराफ अकनाफ के जो भी मुतासिरीन हैं उनके लिए जो है ना हमारे जनाब मंसूर सादी साहब जो है ना ये जो है ना कार खैर का काम अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को आगे तक पहुँचाए और मुतासिरीन तक पहुँचाए ताकि इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। बस यही गुजारिश है। ऑलरेडी हम लोग कॉर्पोरेटर्स को भी इन्फॉर्म करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा फंक्शनल अवेलेबल है आप लोग के लिए, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी हम लोग को। कोई आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर? पर्सनल कांटेक्ट नंबर देखिए 9885239661। फिर एक बार रिपीट करेंगे। 9885239661 जी। ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं नंबर पर, 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर पे अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। और कितने दिन तक रहेंगे? 3 दिन तक।
3 दिन तक उसके बाद जो तो शादी खाने में फंक्शंस है वो वजूहत के वास्ते, नहीं तो अगर अवेलेबल रहा तो 10 दिन तक भी रख सकते थे, लेकिन फंक्शंस है ऑलरेडी लोग बुक करे सो है। और लेडीज़ और जेंट्स के लिए जो लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, पूरे प्राइवेसी का बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह।